आज का जो मेरा वीडियो है इज रिगार्डिंग माय क्रिटिकल अप्रेजल ऑन न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020. लेट मी गो स्टेप वाइज. द फर्स्ट रिफॉर्म, 10 plus 2 is replaced by 5 plus 3 plus 3 plus 4, which also further elaborates like now students do not have to choose the stream, students have to choose the subject and they get this opportunity right from class 8. Great. Sounds very beautiful, sounds very interesting, because this is exactly what is done in West. US, UK, Australia, European countries, they all offer the same. But do you know what is the population of that countries and what is the population of India? Let me put it little straight. In these countries, the subjects or probably the education is completely imparted by the government. Private sector has very little role to play. But in country like India, private sector completely dominates the education sector, which further means that आपके और मेरे बच्चे कौन सी schools में जाते हैं? These are the schools which are run by private sector. Okay, what role do the schools play over here? As government through their boards will offer subjects, will offer the framework, but actual imparting of this is going to be done by schools. Offering so many subjects, is it going to be financially and economically feasible for the schools? And if it is not feasible, they will not do it. Let me tell you one more thing, that it's not that right now the boards, जैसे CBSE board की मैं बात करती हूँ, CBSE board has got multiple subjects. We have got subjects like baking, cooking, pottery, multiple languages, but schools do not offer that because it is not फाइनेंशियली फिजिबल. आज अगर क्लास में 40 बच्चे हैं और उसमें से सिर्फ कोई 2 बच्चे हैं जो बेकिंग करना चाहते हैं, तो उसके लिए एक अलग टीचर, एक अलग लैब, एक अलग इंफ्रास्ट्रक्चर सेट करना बहुत मुश्किल है. सो आई हैव माई डाउट्स. बोर्ड तो ऑफर कर लेगा, गवर्नमेंट के इंटेंशंस भी है, बट डू यू रियली थिंक इट इज इकोनॉमिकली एंड फाइनेंशियली फिजिबल फॉर स्कूल्स? माई पॉइंट नंबर 2, evaluation. Wonderful evaluation system has come. Now the child will not be evaluated just by teacher, but there is going to be a 3-layer evaluation. Like student can evaluate himself, peers will evaluate him or her, and teachers will evaluate. All right. बस यही system है European countries में. There is a peer evaluation so that a child gets a holistic understanding about his growth, progress, and what people think about him. That will help in building his confidence as well. Secondly, we will not even have a biased evaluation of teachers. ग्रेट. प्रैक्टिकली कितना पॉसिबल है ये? टीचर स्टूडेंट रेशो तो हमारे कंट्री में मेंटेन होता नहीं है. आपको लगता है इवैल्यूएशन सिस्टम हम लोग बिल्कुल इसी तरह से कर पाएंगे जिस तरह से बोर्ड ने हमें कहा है? अच्छा, ये चीज बिल्कुल उसी तरह से हो रही है कि नहीं, ये कौन देखेगा? इंस्पेक्शंस तो होते हैं, बिल्कुल इंस्पेक्शंस तो आज भी होते हैं. अगर इंस्पेक्शंस होते हैं तो किस तरह से स्कूल्स में टीचर स्टूडेंट रेशो मेंटेन नहीं होता है? कुछ कुछ क्लासेस कंप्लीटली ओवर क्राउडेड होती हैं. कितने सारे रूल्स और रेगुलेशंस है, जैसे कि स्कूल टीचर्स कैन नॉट टेक ट्यूशंस, बट देयर आर रोरिंग ट्यूशन क्लासेस रन बाय द स्कूल टीचर्स. हु इज स्टॉपिंग इट? तो काफी सारी चीजें हैं जो शायद पेपर पे बहुत अच्छी लगती हैं, बट रियलिटी में उनको इम्प्लीमेंट करना एक अलग बॉल गेम है. माई पॉइंट नंबर 3, 3 languages are going to be introduced now. That is state language, regional language, and student can choose his own language that he wants to study. Now try and understand, 7 subjects तो ऑलरेडी बच्चा पढ़ ही रहा है, उसके ऊपर वो और 3 सब्जेक्ट पढ़ेगा, मतलब टोटल 10 सब्जेक्ट पढ़ेगा. एक तरफ हम बात करते हैं बर्डन फ्री एजुकेशन की, एक तरफ हम बात करते हैं हम किस तरह से हमारी एजुकेशन को ज़्यादा से ज़्यादा क्रिएटिव बना सके, ज़्यादा से ज़्यादा लेस बर्डनिंग करें, और दूसरी तरफ हम 10 सब्जेक्ट्स का प्रेशर दे रहे हैं बच्चों पे. क्या हमारे पास इतना इंफ्रास्ट्रक्चर है? क्या हमारे पास ऐसे टीचर्स हैं? क्या हमारे स्कूल्स इतने इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करने के लिए तैयार है? क्योंकि जब हम इतने सारे सब्जेक्ट्स ऑफर करते हैं तो नंबर 1, वी नीड टू हैव दैट वेल ट्रेन्ड, वेल इक्विप्ड schools and teachers. I have my doubts. My point number 4 is bagless education. There will be 10 days in the school where child is not supposed to carry his bag and he will just be studying different vocational skills like pottery, cooking, and he will be going for a community services. Excellent. सुनने में बहुत अच्छा लगता है कि बस यही है, इसी का तो इंतजार था. अब मेरे बच्चे को मुझे कहीं भेजना नहीं पड़ेगा, इंडिया ही उसे सब कुछ ऑफर कर देगा. एक्सीलेंट. पर आपको लगता है ये चीज नहीं है? लाइफ स्किल्स और मॉरल साइंस के क्लासेस होते हैं, इसके पीरियड्स आज भी रखे जाते हैं, बट दीज पीरियड्स आर टेकन अवे बाय मैथ्स एंड साइंस टीचर्स टू कंप्लीट देयर सिलेबस. तो ये जो सारी चीज़ें हमने आज एजुकेशन पॉलिसी में सुनी है, वो ऐसा नहीं है कि हमारी प्रेजेंट पॉलिसी में नहीं है, कहीं ना कहीं पे है ये सारी चीज़ें, पर इसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाता है.
शायद मैं जब ये बात करती हूँ तो आई माइट साउंड लिटिल पेसिमिस्टिक. आई एम नॉट पेसिमिस्टिक, आई एम जस्ट ट्राइंग टू बी लिटिल प्रैक्टिकल. आई माई सेल्फ बिलोंग टू एजुकेशन इंडस्ट्री. एजुकेशन इज माई ब्रेड एंड बटर. आज 20-25 साल हो गए मुझे इसी इंडस्ट्री में. आई हैव वर्कड इन स्कूल्स, आई रन माई ओन कोचिंग इंस्टीट्यूट. सो नॉट दैट आई फील कि ये सब कुछ इम्प्लीमेंटेबल नहीं है, बिल्कुल इम्प्लीमेंटेबल है, बट आई एम श्योर गवर्नमेंट विल हैव टू थिंक लिटिल आउट ऑफ द बॉक्स गेम प्लान टू इम्प्लीमेंट दिस. एट द सेम टाइम मीडिएटर्स, that is schools, will also have to have the same intention as government has. When schools are run by private institutes which only have profit making objective, then I have my own doubts कि किस तरह से education को हम एक नया चेहरा, एक नया perspective दे पाएंगे. Government, I am very hopeful, I am very optimistic, but yes, we are just waiting for your stepwise implementation plan. Thank you.